Today we will discuss about is matter around us pure. We know that the matter is made up of particles which are arranged in certain way. We know that the gaseous particles are very far from each other, solid particles are very close to each other. Is all the matter around us pure? Like if we say milk, if we say water, if we say if we mix water and salt, is all the matter in the last chapter we have discussed that is something which occupies space and has some volume. Is all the matter around us pure? The answer is no. There is a lot of things which are impure in our nature. Okay, next we move on to how can we classify matter. Matter can be classified in two ways. First is physical classification, second is chemical classification. Physically, matter can be classified into three categories. One is solid state, liquid state, and gaseous state. So, what is solid, liquid, and gaseous states? These things we have discussed earlier. Now we will discuss only the properties of solid, liquid, and gaseous state. Okay, in the next slide, we have shown that there are some properties which are different from solid, liquid, and gas. Very first property is volume. Volume is definite for solid and liquid but indefinite for gas. Shape is definite for solid but indefinite for liquid and gas both. What about intermolecular forces? These are the most important thing which is the basic of how solid, liquid and gases behave. Intermolecular forces are highest in solid, lesser in liquid and very less in gas. What about arrangements of molecules? The particles are orderly arranged. Orderly means the particles are arranged in a regular fashion. The particles are not free to move in case of solid state, but in liquid state particles are free to move in the volume. Means what? Means जिस particular container में आपने liquid को रखा है उसमें particles are free to move. What about gaseous state? Particles are free to move everywhere. Now next is what about intermolecular space? As the thing so that solid have very less intermolecular space. Liquid is slightly greater and gases have very high intermolecular space. What about compressibility? Solids are not compressible. अगर आप किसी भी solid को compress करने की कोशिश करें you can't compress it. But what about liquid? Liquids are not also compressible, but gases are highly compressible. You heard of CNG, compressed natural gas, expansion on heating. Matter like solid very less expand on heating. Liquids are very little and gases are highly expandable. Next is what is a chemical classification of matter? Matter can be classified into following categories chemically. What are these? Very first two categories you classify matter is pure substance and mixture. Pure substance means what? The substances which is in purest form, and pure substance are further classified into elements and compounds, and mixtures are further classified into homogeneous and heterogeneous mixture. Okay, now we move on to what are pure substances. Pure substance are elements or compound that we have discussed in the last slide. These are made up of only one kind of entity, that may be atom, molecule, anything else, or ions. These cannot be broken down into simpler entities. Means आप प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर ब्रोक डाउन नहीं कर सकते. एलिमेंट्स को नहीं कर सकते, हम कंपाउंड्स को कर सकते हैं. कंपाउंड जैसे अगर वाटर लीजिए आप H2O कैन बी फर्दर broken down into hydrogen gas and oxygen gas. They have fixed composition. Means आपके पास कोई भी एलिमेंट कंपाउंड हो, हमेशा उसका जो रेशियो है, जैसे अगर मैं वाटर की बात करता हूँ तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O होता है, वो कभी भी H3O नहीं होता. दैट मीन्स आपके पास जो पार्टिकल्स हैं in pure substance have always fixed composition. Next is what do you understand by element? Now we discuss one by one what is element and compound. Element is the simplest form of a matter which cannot be split
into simpler substance means आप उसे further split नहीं कर सकते. Or you can say that elements is made up of only one type of atom. This is the exact definition. Only one type of atom means elements like, अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन एटम की और हाइड्रोजन मोलिक्यूल की. हाइड्रोजन एटम में एक हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन गैस जो है या फिर मोलिक्यूल जो है उसमें दो हाइड्रोजन होते हैं. दिस इज एन एलिमेंट बिकॉज दिस हाइड्रोजन मोलिक्यूल हैज़ टू हाइड्रोजन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम. और आप ऑर्डिनरी मेथड से फिजिकली या केमिकल से उसे अलग नहीं कर सकते. यू नीड सोफिस्टिकेटेड, या तो आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिएगा या फिर और कोई टेक्निक चाहिएगी टू separate these two like if we say hydrogen or oxygen, all the gases in molecule form like hydrogen, oxygen, or we can nitrogen, these all gases are elements because these are only made up of one type of atom. Elements, there are 118 elements out of which 94 are naturally occurring. आप लोगों ने periodic table का नाम सुना होगा. There are 118 elements in periodic table. Elements can be further classified into metals, non-metals and metalloids. इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे. मेटल्स जो है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, नॉन मेटल्स कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको हम डिस्कस करेंगे. और मेटलॉइड्स पे वो चीज़ होती है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है. ओके, next we move on to periodic table. This periodic table shows that there are 118 element, 118 element हैं on the universe, in the universe, on the earth, out of which 94 element are man-made. Sorry, 94 element are natural. उसमें से 94 element ऐसे हैं जो naturally available हैं. Next we move on to what do you understand by compounds. Compounds is a purest substance which is made up of two or more elements combined in a definite ratio और proportion. Definite ratio और proportion एक ही चीज़ है. इसे आप definite composition भी बोल सकते हो by mass. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई, आप कहीं से भी कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड उठाइए. अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अगर मैं इंडिया की लेता हूँ या फिर किसी और कंट्री की लेता हूँ, दिस ऑलवेज हैज़ वन कार्बन एंड टू ऑक्सीजन. So one carbon and two oxygen combines together to give carbon dioxides. और इन्हें आप split मतलब अलग अलग कर सकते हो by suitable chemical methods. A compound is pure substance which is made up of two or more elements combined in a definite or fixed composition or fixed ratio by mass. So what are the characteristics of compounds? Compounds always contain definite proportions. Means कंपाउंड का जो मास का रेशियो है ना भाई, एक कंपाउंड है उसमें जो एटम्स का या फिर एलिमेंट्स का रेशियो वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा. द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म. जो प्रॉपर्टीज़ है कंपाउंड की वो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल अलग रहेंगी. जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं पर H2O बनता है विच इज़ अ लिक्विड. नेक्स्ट इज मिक्सचर. मिक्सचर आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस such that each substance retains its chemical identity. Means what? आपने दो चीज़ों को मिक्स करा. इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इनको किसी भी रेशो में मिक्स कर सकते हो. कंपाउंड में आपने फिक्स रेशो में मिक्स करना था. मिक्सचर में आप किसी भी रेशो में दो चीज़ों को मिक्स कर सकते हो. जैसे मैंने मिट्टी में नमक मिला दिया, मिट्टी में पानी मिला दी, या फिर नमक में पानी मिला दिया अपने अंदाजे के हिसाब से. आई डोंट नो व्हाट इज़ द फिक्स रेशियो. यहाँ पे फिक्स रेशियो नहीं है. मिक्सचर दो टाइप का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमो का मतलब एक होता है भाई. मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर विच कंटेन्स सेम कंपोजिशन. सेम कंपोजिशन कैसे? अगर आपने पानी में नमक मिलाया तो आप ये नहीं बता सकते कि एक जगह पे ज़्यादा नमक है एक जगह पे कम नमक है. पूरा का पूरा नमक जो है भाई वो पानी में एक तरीके से
घुलेगा और हर जगह सेम रहेगा। इसका मतलब सेम कंपोजिशन है उस मिक्सचर में थ्रू आउट द सॉल्यूशन, उसे आप क्या बोलते हो, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हो। और ये जो कंपोनेंट्स हैं होमोजीनियस मिक्सचर के, उसे आप पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। और जो होमोजीनियस मिक्सचर है दो कंपोनेंट्स का, उसे आप बोलते हो सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर एयर क्या है, वही मिक्सचर ऑफ गैसेज है, इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और बहुत सारी गैसेज हैं जो एक मिक्सचर है गैसेज का, मिक्स हो रखे हैं वही गैसेज। सी वाटर मतलब क्या है, समुद्र का पानी जिसके अंदर नमक होता है। अभी नमक और पानी जो है दैट इज आल्सो अ मिक्सचर। गैसोलीन जो है वो क्रूड प्रोडक्ट होता है फॉर मेकिंग पेट्रोलियम, डीजल एंड अदर प्रोडक्ट्स, जैसे एलपीजी, वो सारी चीज़ें उसी से निकलती हैं। ब्रास एक मिक्सचर होता है दो सॉलिड्स का, नाम्बा जिसे बोलते हैं। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। और जो मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स है ना, उसे हम एलोय भी बोलते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज heterogeneous mixture? Heterogeneous mixture are those mixture which consist of two or more phases। मतलब आपने क्या करा, पानी में तेल मिला दिया भाई, तो आपको अलग तेल अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा। तो ऐसे टाइप के मिक्सचर जिनमें विजिबल बाउंड्रीज दिख रही हो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स की नेकेड आई से, उसे आप बोलते हो क्या, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे आपने सैंड और साल्ट को मिलाया, आपने मिट्टी और नमक को मिलाया, तो मिट्टी अलग कर सकते हो, नमक अलग कर सकते हो। चाक पाउडर को अगर आप मिलाओगे वाटर में, तो चाक का कुछ पोर्शन ऊपर रह जाएगा, कुछ नीचे चला जाएगा, मतलब सेम कंपोजिशन नहीं रहेगी थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इसके अलावा अगर आप मिट्टी को पानी में मिलाते हो, सैंड इन वाटर, दिस इज आल्सो हिट्रोजीनियस मिक्सचर, बिकॉज जो आपने सैंड को वाटर में मिक्स करा है दैट इज not having same composition throughout the solution. Next we move on to what is physical or chemical changes. A substance is said to physical change। आप इसे ऐसे समझिए, आपने आइस को बाहर रख दिया, बर्फ थी भाई, उसे बाहर रख दिया, तो वो जो है लिक्विड में चेंज हो गई। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो सब्सटेंस है उसके शेप, साइज, कलर या फिर स्टेट में चेंज आता है। स्टेट मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। इफ देयर इज चेंज इन शेप, साइज एंड कलर एंड स्टेट, तो उसे आप बोलते हो फिजिकल चेंज, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। बट व्हाट अबाउट केमिकल चेंज? अब आप ये देखिए कि मिल्क से कर्ड, दूध से दही जमती है, आप लकड़ी को जलाते हो, तो उस टाइम आपके पास गैस जनरेट होती है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कोई सब्सटेंस जो है वो अंडरगो केमिकल चेंज करता है, तो वो हमेशा न्यू सब्सटेंस बनाता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी न्यू होती है, कम्प्लीटली न्यू। इसके एग्जांपल में आप मिल्क से कर्ड बनाना देख लीजिए, या फिर आप बर्निंग ऑफ फूड देख लीजिए, या फिर आप सिंपल एग्जांपल बहुत सारे हैं केमिकल रिएक्शंस के, जिसमें जो मैंने पहले बहुत बार डिस्कस भी करा है। अगर आप टर्मरिक पाउडर, हल्दी में अगर आप उसका सॉल्यूशन बना के उसके अंदर आप डिटर्जेंट या फिर सोप डालते, तो उसका कलर चेंज हो जाता है भाई, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ठीक है। सो दैट इज आल्सो ए केमिकल चेंज दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एडिशन ऑफ अ बेस। क्योंकि जो आपके पास घरों में साबुन या फिर वो डिटर्जेंट होता है दैट इज बेस, और वो उसके कलर को चेंज कर देता है, जो हल्दी है उसकी। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू a solution. A solution is a homogeneous mixture of two or more non-reacting components or substances। आपके पास दो या दो से अधिक, टू या मोर, नॉन रिएक्टिंग, दो एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करें, उन चीज़ों को मिलाने से जो बनता है भाई वो सॉल्यूशन होता है। मीन्स व्हाट, अगर आपने से फॉर एग्जांपल आपने क्या करा कि हाँ, वाटर में साल्ट को मिक्स करें, वाटर इन साल्ट, या फिर वाटर में चीनी को मिलाया, पानी को चीनी में मिलाया, तो इस केस में क्या होगा, आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा और वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट भी नहीं करते हैं, तो उसे आप बोलते हो सॉल्यूशन। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज आर, इट्स पार्टिकल आर टू टाइनी, बहुत छोटे होते हैं और उनका डायमीटर जो है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है,
और जिस टाइम भैया आपने चीनी को मिला दिया ना पानी में, आप उसे विजिबल आई से, सॉरी विजिबल नहीं कर सकते नेकेड आई से। पार्टिकल डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। अब आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, टिंडल इफेक्ट होता क्या है। भाई आपने कभी घरों में देखा होगा, खिड़की से अगर छोटी सी खिड़की जो है अगर वो टूटी हुई है, तो वहाँ से अगर सूर्य की रोशनी आ रही है तो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे। वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो जो लाइट है सनलाइट उसे स्कैटर करते हैं, फैलाते हैं, तो उसको आप टिंडल इफेक्ट बोलते हो। सॉल्यूशन जो है वो कभी भी स्कैटरिंग नहीं करता लाइट की, तो पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर द लाइट, इसीलिए वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते सॉल्यूशन के। आप इसे दोबारा समझ लीजिए, अगर किसी छोटे पार्ट से खिड़की टूटी है या कहीं से भी छोटे पार्ट से अगर रोशनी आ रही है और वहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि पार्टिकल्स स्कैटर कर रहे हैं लाइट को, इसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। बट सॉल्यूशन के केस में ऐसा नहीं होता है। द सोल्यूट पार्टिकल नेवर सेटल डाउन ऑन कीपिंग अनडिस्टर्ब, मीन्स अगर आपने सॉल्यूशन बना के छोड़ दिया तो सोल्यूट पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। द कंपोजिशन of a solution cannot be separated using, oh sorry, the composition, the components, आप फिल्ट्रेशन से या फिर सिंपल फिल्ट्रेशन से आप कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं कर सकते सॉल्यूशन के। नेक्स्ट इज, what are two components in the solution? One component is known as solute, another is in solvent. सोल्यूट भाई इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे समझो, वो जो कम मात्रा में अवेलेबल है, और सोलवेंट जो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। जैसे हम पानी हमेशा ज़्यादा लेते हैं, नमक कम लेते हैं और चीनी कम लेते हैं, तो नमक और चीनी सोल्यूट है और सोलवेंट क्या है, पानी। और उन दोनों के नॉन रिएक्टिंग होमोजीनियस मिक्सचर से क्या बनता है, नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स के होमोजीनियस मिक्सचर से सॉल्यूशन बनता है। इसको मैंने डेफिनेशन में लिखा है, द सब्सटेंस दैट गेट डिजोल्व इन द सॉल्वेंट, जो सब्सटेंस सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है उसे सोल्यूट बोलते हैं। और सोल्यूट हमेशा कम मात्रा में होता है, कम अमाउंट में होता है, और सोल्वेंट हमेशा ज़्यादा मात्रा में होता है, और वो सोल्यूट जो है डिजोल्व करता है सोल्यूट को, उसे आप सोलवेंट बोलते हो। नेक्स्ट इज, व्हाट आर एलॉयज। मैंने बोला था एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल or mixture of a metal with another element that cannot be separated by from its component by physical method। आपने दो सॉलिड्स को हीट करके गर्म कर दिया, ठीक है, या फिर सॉलिड या और किसी चीज़ को हीट करके गर्म कर दिया। जैसे ब्रास में बता रहा था, कॉपर और जिंक मेटल जो है भी उनको हीट करा और उनको जो है आपने क्या कर दिया, उनको ठंडा कर दिया, तो आपके पास जो बनेगा वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा मेटल्स का या फिर मेटल का अनदर एलिमेंट के साथ, जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, उसे आप एलॉय बोलते हो। जैसे स्टील इज अ कम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन। स्टील, आयरन और कार्बन जो हम घरों में यूज़ करते हैं अभी, आयरन जो है वो रस्ट हो जाता है लेकिन स्टील रस्ट नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल चेंज हो गई बाय एडिशन ऑफ कार्बन। ऐसे ही ब्रोंज जो है वो कॉपर और टिन से मिलके बना होता है, ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है। ओके, नाउ आई एम कंक्लूडिंग दिस सेशन। नेक्स्ट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास।